Hello students, class 11, chapter number 5, laws of motion. Topic is acceleration of a body on applying a force on a rough surface. First case में ले रहे हैं एक horizontal surface and consider a body of mass m is placed on this horizontal rough surface and a force F is applied, capital F force is applied on the body, and you know the weight of the body mg acts vertically downward and the normal reaction on the body by the horizontal surface is vertically upward, and when body moves along positive direction, positive x-axis direction, or you can say along the direction of applied force, then a force of friction comes into play into opposite direction of the motion of the body. Because here this body is in motion, यहाँ पर ये बॉडी मूव करती है, इसलिए जो फ्रिक्शन आता है, दिस फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दिस एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन. हमने लास्ट क्लासेस में किया दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन and this mu k is coefficient of kinetic friction and this n is equal to mg. Therefore this kinetic friction Fk is equal to mu k into mg, and let this is the acceleration of the body in the direction of force. Horizontal surface पर रखने के बाद we are using here the Newton's second law. Newton's second law के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, बॉडी पर टोटल फोर्स इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. बॉडी पर जो टोटल फोर्स है यहाँ पर दिस इज कैपिटल एफ माइनस एफ के, कैपिटल एफ माइनस एफ के, दिस इज टोटल फोर्स, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन एक्स एक्सिस. एफ कैपिटल एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए. But you know here this Fk is equal to mu k into mg. This kinetic friction is mu k into mg. Therefore put here this Fk is equal to mu k into mg is equal to this ma. And now from here acceleration is given by divided by m both sides. Then this acceleration is equal to F upon m. This capital F upon m minus mu k into g. So this is the acceleration of the body when it is placed in horizontal rough surface and a force F is applied. Acceleration of the body A is equal to capital F upon m. This capital F is the applied force upon body ka mass minus mu k into g. Now second case is when body is placed on inclined rough surface and body is sliding down. The body sliding down a rough inclined plane. तो इस केस में हमें एक्सेलरेशन देखना है, कितना एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है. कंसीडर हियर दिस inclined plane making an angle alpha with the horizontal, this horizontal line, and this inclined plane making an angle alpha with the horizontal, and a body of mass m is placed on this rough inclined plane, and the weight of the body acts vertically downward, and this weight can be resolved into two rectangular components. This is mg sin alpha along the inclined plane, and second rectangular component is mg cos alpha which is perpendicular to inclined plane, mg cos alpha. And now this is normal reaction on the body by the inclined plane, and when body slides down a force of friction comes into play which is in opposite direction of the motion of the body. जब बॉडी हमारी स्लाइड करना स्टार्ट करते स्लाइड दिस डाउनवर्ड, then a force of friction is comes into play. This is kinetic friction and this is equal to mu k into m, and here this n is equal to mg cos alpha, बिकॉज ये आपका नॉर्मल रिएक्शन बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, बट दिस एम जी कॉस अल्फा बॉडी को नीचे लेकर आने की कोशिश करता है, बट ये बॉडी यहाँ पर यहीं पर स्टेशनरी होती है
मतलब अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग परपेंडिकुलर मूव नहीं करती है। देयरफॉर दिस n इज इक्वल टू mg cos अल्फा, दिस n इज इक्वल टू mg cos अल्फा। बॉडी केवल इस इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड मूव करती है। नाउ अलोंग इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स बॉडी पर देखते हैं। दिस इज mg sin अल्फा माइनस एफ के। डायरेक्शन मोशन की ये है तो दिस फोर्स इज ग्रेटर। दिस इज mg sin अल्फा माइनस एफ के एंड दिस एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन and n is equal to you know this mg cos alpha. Now this is mg sin alpha minus fk is equal to ma, or this is mg sin alpha is equal to mu k into n is equal to ma. Now on putting the value of this n from equation 1, so this is as it is mg sin alpha minus mu k into n is equal to mg cos alpha is equal to this ma. Now this m cancel by this both sides and hence acceleration a is equal to this sin alpha minus mu k into cos alpha into g. So this is the value of acceleration of the body on rough inclined plane. A is equal to sin alpha minus mu k into cos alpha into g. This is the acceleration of the body on rough inclined plane when body is sliding down. Now next case is retardation of the body. Retardation of the body sliding up a rough inclined plane. यहाँ पर अब इस केस में हमारी बॉडी ऊपर मूव करती है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाती है ये, तो इसमें हमें रिटार्डेशन देखना है। ऊपर जाते टाइम इसकी स्पीड कम होगी, दैट्स वाई रिटार्डेशन इसमें होगा। तो सिमिलरली दिस हॉरिजॉन्टल लाइन and this inclined plane making an angle alpha with the horizontal, and this is rough inclined plane. Now this weight of the body mg vertically downward, and this weight can be resolved into two rectangular components. This first is mg sin alpha and second is mg cos alpha, and this is normal reaction on the body by the inclined plane. Now here also F net from the Newton's second law motion, F net is equal to ma. बॉडी पर F net देखते हैं पहले। बॉडी हमारी ऊपर की डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, देयरफॉर फ्रैक्शन इसके अपोजिट लगता है। तो ये फ्रैक्शन और mg sin अल्फा दोनों ही अपोज करते हैं बॉडी की मोशन का। बॉडी की मोशन का दोनों ही अपोज करते हैं। बॉडी की मोशन देखिए यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में इंडिकेट की है, तो ये बॉडी ऊपर जाती है, फ्रिक्शन यहाँ पर लगता है, वेट का ये कंपोनेंट भी यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलकर बॉडी की मोशन का अपोज करते हैं। और जब बॉडी की मोशन का अपोज होता है तो बॉडी में रिटार्डेशन डेवलप होता है। उस रिटार्डेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये टोटल रिटार्डिंग फोर्स इज mg sin alpha plus fk, total retarding force. This force is against the motion of the body. This plus this force is against the motion of the body. Therefore, this is retarding force is equal to ma. Now, this mg sin alpha plus mu k into n is equal to ma. Here also this n is equal to mg cos alpha. So, this is here mg sin alpha plus mu k into mg cos alpha is equal to ma. Now this m is cancelled both sides and hence the retardation A is equal to this sin alpha plus mu k into cos alpha into g. So this is the acceleration, means retarding acceleration of the body on a rough inclined plane. Now next topic is work done in moving a body over a rough surface. किसी बॉडी को हमें हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ता है ये कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ सरफेस, एंड ए बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन इट। एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर प्लेस किया एंड ए फोर्स F इज अप्लाइड। ड्यू टू दिस बॉडी start to move.
ये फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। नाउ इफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, बॉडी यहाँ पर मोशन में है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप होता है। एंड दिस काइनेटिक फ्रिक्शन यू नो म्यू के इनटू एन होता है। एंड हियर दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी बाय द सरफेस, राइट। एंड हियर also this n is equal to mg, this n is equal to mg, and now you know the work is equal to force into displacement. You know work is equal to force into displacement, therefore this work is equal to F into S. But this force, applied force, must be equal to this kinetic friction when acceleration is zero, or you can say the body moves with constant speed. यदि इस बॉडी को हमें मूव कराना है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना है, तो ये हमारा फोर्स, अप्लाइड फोर्स कम से कम इस एफ के इक्वल होना चाहिए, इस काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए। यदि बॉडी को हमें कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना है, विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है, तो ये अप्लाइड फोर्स हमारा इस काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए। दिस काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन होता है, म्यू के इंटू एन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एफ, applied force is equal to this kinetic friction. This is mu k into n into displacement is s, right? And this n is equal to mg. This n is equal to normal reaction is weight. This is mg into s. So this is the required expression for work on moving a body on rough horizontal surface. So this work is equal to mu k into mg into s. This is the work done in moving a body on rough horizontal surface. Now second case is this rough inclined plane. इस rough inclined plane पर हमें बॉडी को मूव कराना है तो कितना वर्क करना पड़ता है। रफ inclined plane पर, this is rough inclined plane making an angle alpha with the horizontal. हॉरिजेंटल के साथ एंगल अल्फा बनाता है, तो बॉडी को हमें मूव कराना है। मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ता है, दिस इज रिक्वायर्ड। नाउ सपोज दिस वेट ऑफ द बॉडी mg, बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड दिस वेट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फर्स्ट इज mg sin alpha and second is mg cos alpha. And when body moves in this direction, a force of friction comes into play opposite to the direction of motion, and this is Fk. Because यहाँ पर मोशन में है बॉडी, मोशन में होने पर काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, तो यहाँ पर जब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो दिस इज Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, and this n is equal to here mg cos alpha. This n is equal to mg cos alpha, right? तो यहाँ पर हमें बॉडी को मूव कराने के लिए, इस इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड मूव कराने के लिए, द फोर्स रिक्वायर्ड F इज इक्वल टू दिस mg sin alpha प्लस Fk. बॉडी ऊपर मूव कर सकती है कब? जब हम बॉडी पर इतना फोर्स अप्लाई करते हैं, दिस इज mg sin alpha प्लस Fk। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी, विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव करेगी, इफ दिस अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, दिस अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस mg sin alpha plus Fk, and this is mg sin alpha plus Fk is equal to mu k into n. This Fk is equal to mu k into n. And on putting this value of n here, this is mu k into mg cos alpha. तो this is required force, जितना हमें फोर्स लगाना है इस बॉडी को मूव कराने के लिए। नाउ हमें वर्क कैलकुलेट करना है। यू नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर दिस वर्क इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू रखते हैं हम ये, दिस इज mg sin alpha प्लस mu k mg cos alpha इनटू डिस्प्लेसमेंट s. And this can be written as, this is mg is common, take outside, this mg
is common, take outside. So this is sin alpha plus mu k into cos alpha into s. This is total work done in moving a body up the inclined plane. इस बॉडी को ऊपर रफ इंक्लाइन प्लेन पर मूव कराने के लिए इतना वर्क करना पड़ता है. दिस इज mg sin alpha प्लस म्यू के इंटू mg cos alpha. हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक s था. इस बॉडी को हमें यहाँ से यहाँ पर ले जाना है, तो इसमें जो वर्क करना पड़ता है दैट इज इक्वल टू दिस mg इज कॉमन, टेक आउटसाइड. तो हियर दिस इज sin alpha प्लस दिस म्यू के इंटू cos alpha into this displacement s. So this is required work done in case of body moving upward on a rough inclined plane. Now numerical: a block slashed down a plane inclined at 30 degree with a horizontal. Given mass of the block is 5 kg. Find number 1 acceleration of the block if the plane is frictionless, and number 2 acceleration if kinetic friction, coefficient of kinetic friction is 1/2 root 3. हमें यहाँ पर एक रफ इंक्लाइन प्लेन, मतलब दो केसेस हैं. पहले केस में हमें इंक्लाइन प्लेन स्मूथ गिवन है विदाउट एनी फ्रिक्शन. फर्स्ट केस में कहता है ये हमारा इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है. यहाँ पर एक बॉडी हमारी 5 kg, इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 है, तो ये बॉडी हमारी स्लाइड करती है. तो इसका एक्सेलरेशन हमें चाहिए, एक्सेलरेशन फाइंड करना है. पहला केस हमारा क्या है, ये फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है. दूसरे केस में हमें रफ इंक्लाइन प्लेन गिवन है, दूसरे केस में रफ इंक्लाइन प्लेन और इसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमें गिवन है 1/2 रूट 3. तो पहले फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर दिस वेट ऑफ द बॉडी mg एंड दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. दिस इज mg sin 30, पहला कंपोनेंट जानते हैं, एंड दिस इज mg cos 30. नाउ दिस इज नॉर्मल रिएक्शन on the body by the inclined plane. Now जो बॉडी की मोशन है वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, एंड सपोज एक्सेलरेशन ए बॉडी पर नेट फोर्स लगता है डाउन द इंक्लाइन प्लेन. नेट फोर्स कितना, mg sin 30. यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन हमने नहीं अप्लाई किया क्योंकि ये स्मूथ है, हमारा फ्रिक्शन लेस है पहले पार्ट में, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है. तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी दिस mg sin 30, एंड हेंस न्यूटन सेकंड लॉ से क्या करते हैं, F net इज इक्वल टू ma. न्यूटन सेकंड लॉ से F net इज इक्वल टू ma. नेट फोर्स कितना है, mg sin 30 इज इक्वल टू ma. m से m कैंसिल, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन द फ्रिक्शनलेस प्लेन इज g sin 30. g इज इक्वल टू 10 1/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ना सेकंड केस में कहता है हमारा ये इंक्लाइन प्लेन हमारा क्या है, ये हमारा रफ है, इस पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा 1/2 रूट 3 है. तो इसमें हमें बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. तो हमने सबसे पहले दिस वेट ऑफ द बॉडी mg रिजॉल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. दिस इज mg sin 30 एंड दिस इज mg cos 30. जानते हैं आप, ये बार बार इसका यूज होता है. देखिए यहाँ पर mg के दो कंपोनेंट, this is mg sin 30 and this is mg cos 30. Now normal reaction on the body by the inclined plane, this is n. now body ये स्लाइड करती है, स्लाइड डाउन द inclined plane. तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन है, इस प्लेन में रफ सरफेस है, तो यहाँ पर एक कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये बॉडी हमारी स्लाइड करती है नीचे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा इसके अपोजिट लगता है. तो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, एंड यू नो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन होता है, म्यू के इंटू एन. नाउ अकॉर्डिंग टू अगेन दिस एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. न्यूटन के सेकंड लॉ से टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. नाउ एफ नेट कितना है, बॉडी इस डायरेक्शन में आती है
एक्सेलरेशन ए से आती है। तो दिस इज mg sin 30 माइनस एफ के एंड एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू एम ए। दिस इज नेट फोर्स mg sin 30 माइनस म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू एम ए। दिस इज mg sin 30 म्यू के एन इज इक्वल टू हमने यूज किया यहाँ पर देखिए अगेन mg cos 30 इज इक्वल टू एम ए। एम से एम कैंसिल बोथ साइड एंड दिस इज g sin 30 इज 1/2 म्यू के हमें गिवन है दिस इज 1/√2 1/2 रूट 3 1/2 रूट 3 एंड दिस g is 10 cos 30 is √3/2 and this is 2 5 are 10 this is 5 here and this is cancel होकर this is on solving 5/2 is equal to a and this 5 minus 5/2 acceleration of the body is how much? This is a is equal to 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले केस में हमारा स्मूथ था फ्रिक्शनलेस और दूसरे केस में हमारा ये रफ सरफेस था। तो दोनों में हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।